Hello. Good afternoon, sir. Yes, Yes, sir. screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good sir. Okay, afternoon. sorry for the delay. Unfortunately, my system, there was some system with the problem with the mouse. Anyway, so last time we were talking about the classification of systems and we have already completed up to few systems, right? About linearity, stability, causality, and invertibility, time variant, time invariant, memory less, and memory based system. So today we will discuss some problems, whether the system is linear, non-linear, stable, all that. We will have some problem. So the first problem is yn equals to nxn. Now try to find out whether the system is linear or not. Yn equals to nxn. Everywhere you have to apply the property. If you are giving x1t, you are getting y1t. If you are giving x2t, you are giving y2t. You are getting up by 2t. And if you are giving ax1t plus bx2t, so you are getting ay1t plus by2t. This is the property of your linear system. If the system is not following these equations, the system is non-linear. So yn equals to nxn, you need to find out whether the system is linear or not. Yes, start doing. So how can you write? I can write a mathematical equation y1 equals to nx1, y2 equals to nx2, or if you multiply a on the both side, so you will have a y1n equals to a nxn h1. Hello? And Yes, if sir. you have b by 2n equals to b n x2n, and if you add these two equations, whether you are getting the same equation or not, linear होगा या नहीं? Verify this condition. Whether the system will be linear or not. Everybody has to try. क्योंकि आप until unless you go for the practice, एग्जाम में आपसे सवाल नहीं बनते. प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है स्क्रीन पर. ax1t plus bx2t must be equals to ay1t plus by2t. Only then the system will be linear. क्या होगा? The first one will be linear. Linear. What about second one? yt equals to xt minus 1. कौन बताएगा? See, look at this, how you will treat this. Whenever you talk about the system output, so ax1t plus bx2t can be treated as a composition of signal, which is your x of t, and overall y of t is your ay1t plus by2t. So if you apply this condition with this, so the condition will be output ytt equals to a1 x1t plus a2 x2t, a1 xt minus 1 plus a2 xt minus 2. Whereas a1 y1t is equals to this, a2 y2t equals to this. So overall yt will be a1 y1t plus a2 y2t, which is not equals to the y of t. Y of t is this one. So ultimately this will be a, कैसा होगा? Non-linear.
Non-linear. ठीक है. Similarly, we have another example, yt equals to txt. ये किस तरह का होगा? लीनियर होगा, बिकॉज yn इक्वल्स टू nxn अगर लीनियर है तो yt इक्वल्स टू txt भी लीनियर. नेक्स्ट yt इक्वल्स टू x स्क्वायर t. इसको करके देखिए आप लोग, सिर्फ लिखे होने से काम नहीं चलेगा. yt इक्वल्स टू x स्क्वायर t. तो अगर इसमें मैं a1 y1 t लिखूंगा तो उसको इसके इक्वल होगा. a1 y1 t will be equals to a1 x1 square t. a2 y2 t equals to x2 square t, right? And if I add a1 y1 t plus a2 y2 t, so that has to be equal to a1 x1 square t plus a2 x2 square t. But instead of xt, if I put a1 x1 t plus a2 x2 t, so you need to take the square of that. So there will be an extra term which is generated. वो extra term क्या होगी? वो एक्स्ट्रा टर्म होगी 2x1t x2t and also a1t and a2t. Sorry, a1 and a2. That extra term will be 2a1 a2 x1t x2t, which is not required for a linear condition. So ultimately this will be a non-linear system. ठीक है? I hope सभी को समझ में आ रही होगी ये बात. Okay? Now come down to this equation. This is an important equation that tells you each and everything. Y of n equals to 2nxn plus 3. यहाँ लिखा हुआ है, this is a non-linear equation. How? As far as the system part is concerned, this equation is related to a non-linear system. कौन बताएगा कि non-linear क्यों है? There will be an extra term of 3a plus b. There will be extra term and Yes. 3 will be gone actually. Yeah. So there will be an extra term. When you write y1 or a1 y1 n, that will be 2 x1 n plus 3, a2 by 2 n equals to 2 x2 n plus 3. And when you add a1 y1 plus a1 y1 n plus a2 y2 n, right? And instead of x of n, if you write a1 x1 n plus a2 x2 n, so this will give you an extra term which is not required actually, right? So this will be a non-linear equation. So in this way we will be able to know that whether the equation is linear or non-linear. So there are few examples that yt equals to xt cos t. Remind one thing, this equation is a linear equation because cos t is not a signal. xt is the input signal and yt is the output signal. The cos t is simply a multiplier over here. Fine. Next है आपका yt equals to sin x of t. This is a non-linear equation. If you do the equation, solve the equation in a similar manner, you will find the same thing. Similarly, mod of xt will be a non-linear equation. And e to the power xt is again a non-linear equation. So in general, squaring of a signal, addition of a constant, modulus, exponential of xt always leads to a system to non-linearity. Now, can anybody tell me that why we always require a linear system? कितने लोग बता सकते हैं लीनियर सिस्टम की जरूरत हमेशा क्या होती है? सर एनर्जी Why लॉस we do- नहीं होगी. एनर्जी लॉस नहीं होगी मतलब क्या है इसका? लाइक हम सर इनपुट कुछ दे रहे हैं लेकिन उससे आउटपुट जितना एक्सपेक्ट होता है उससे कम या कम आ जाए एक्चुअली.
नहीं तो कम आउटपुट तो हमेशा कम ही आता है। 100% इफिशियंसी तो किसी सिस्टम की नहीं है। यहाँ लीनियरिटी का दूसरा सेंस है। आप प्रिंसिपल पर जाइए, गो टू द प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी। द प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी इज नथिंग बट इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन रिक्वायर्स टू थिंग्स, एडिटिविटी प्लस होमोजेनिटी। वो मैंने आपको नेचर बताया हुआ है, एडिटिविटी के बारे में बताया और होमोजेनिटी के बारे में। व्हाट इज दैट? इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, मैंने बताया पूरा क्लियर उस दिन जब एक्सप्लेन कर रहा था कि सर डेफिनेशन पूछ रहे हैं आप? आई एम नॉट आस्किंग द डेफिनेशन, व्हाई वी ऑलवेज रिक्वायर a linear system, because linear system possesses two properties, homogeneity plus additivity. मैंने उस दिन एग्जांपल भी देके आपको एक्सप्लेन किया था कि why किसी एक सिस्टम के लिए आप उस सिस्टम को ऑपरेट करो, आपका छोटा भाई करे, आपके पेरेंट्स करें, उस सिस्टम का बिहेवियर अलग होना चाहिए क्या? No, No, sir. तो होमोजेनिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स किसी टेबल में लगा रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो कोई दूसरा आदमी भी अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाए तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ही होना चाहिए। दिस इज द होमोजेनिटी। सिस्टम का बिहेवियर सभी के लिए सेम होना चाहिए। आप स्विच ऑन करो, आपके घर में कोई स्विच ऑन करे, अगर 230 वोल्ट दे रहे हैं और 900 आरपीएम से फैन चल रहा है, तो irrespective of the people who is going to switch on, the system must behave like the same. This is homogeneity. And additivity मैंने बताया था क्या है। अगर आप इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हैं किसी चीज को और उसको 2 लोग ट्रीट कर रहे हैं, 3 लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो एडिटिविटी का नेचर फॉलो करेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है या नहीं? Why you guys are missing this? तो किया है, तो दिस इज व्हाट सेम थिंग आई एम आस्किंग। यस, मैं कंफ्यूज हो गया था सर कि आप डेफिनेशन पूछ रहे हैं। नो नो नो, डेफिनेटली मैं फिजिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। दिमाग में आना चाहिए ना कि सिस्टम लीनियर क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि अगला जो चैप्टर है उसमें हम लोग सिर्फ लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करेंगे, विच इज अ एलटीआई सिस्टम, राइट? दैट्स व्हाई मेरा यहाँ पूछना जरूरी था कि व्हाई वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर लीनियर सिस्टम, व्हाई नॉन लीनियर, इवन दो देयर आर नॉन लीनियर सिस्टम। बिकॉज अगर किसी को भी अगर एडिटिविटी को फॉलो नहीं करेगा या होमोजेनिटी का, जैसे ह्यूमन ब्रेन है या आपका एक सिस्टम है बायोलॉजिकल, आपका बिहेवियर सबके लिए अलग अलग है, सेम है क्या सबके लिए? नो सर, बट एक्सपेक्ट क्या किया जाता है आपसे? कि सेम रहे। सेम रहे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जो भी फिजिकल सिस्टम बनाते हैं, एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि उनका बिहेवियर सेम रहे, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज लुक फॉर ए लीनियर सिस्टम। ठीक है। नाउ अभी तक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है शुरू से लेकर एंड तक, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं दैट वी विल डिस्कस टुडे, और इसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है। प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप लोग फटाफट पेन पेपर लेके शुरू करेंगे। पहला प्रॉब्लम है y ऑफ n इक्वल्स टू 6 माइनस n un माइनस un माइनस 6। इसको आपको ड्रॉ करना है, ये क्या होगा, कौन बता पाएगा मुझे? yn आपका है 6 माइनस n, u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 6। तो u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 6 से क्या ड्रॉ करेंगे आप? un is a train of pulses starting from n equals to 0 to infinity. un minus 6 is a train of impulses starting from n equals to 6 to infinity. But if you have un minus 6, how many impulses you will have? So just one impulse from 0 to 6. 0 to 6. 6. Now, Yes. every impulse has some multiplier, that is 6 minus n. So Yes, you sir. keep on changing the value of n, you will get the impulses. So पहले impulse का magnitude कितना होगा? 5. 5 क्यों होगा? n equals to 0 पे 5 हो जाएगा। 6. 6 6। दूसरे impulse का 5. 5. 5 4 3 2 1 1 0। ठीक है। जैसे ही आप n equals to 6 रखेंगे, आपको क्या मिलेगा? 0. 0 0। तो impulses आपको कहां से कहां तक मिल रही हैं? 0 से 5 5.
5 टर्म। ठीक है, तो ये आपका सिग्नल ड्रॉ है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5 वी हैव impulses of magnitude 6, 5, 4, 3, 2, 1. Is it okay for everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now with the help of this, what you need to draw? You need to draw 4 minus n. Sir, 4 it's minus from n कितने लोग? 4 minus n को हम लोग y of minus n plus 4 लिख सकते हैं। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Sir, Suppose minus करो and ये minus होता 4 होगा ना? -4 क्यों होगा? 4 तो प्लस का Okay, लिखा हुआ है। okay, 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 okay. Bracket से बाहर नहीं है. Okay, sir. सपोज करो मैं अगर आपको बोलता कि y of n minus 4 बनाना है, तो what will you will do? सर उसको 4 से infinity ले जाते. 4 से Shift इन्फिनिटी, कर मतलब देते। कितना यूनिट शिफ्ट करते थे आप इसको? 4 यूनिट unit. शिफ्ट करते किस साइड में? Positive सर side. पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में। ठीक है, आई थिंक ये सभी को आता है। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं ड्रॉ y of minus n, what will you do? y of n आपके पास है, y of minus n Minus क्या होगा? infinity to 0 ले जाते. Sir, reflection ले लेंगे y axis के आगे. यस सर। वेरी नाइस। रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो इंपल्सेस कहां से स्टार्ट होंगी? From minus infinity to 0. ओहो, इंपल्सेस है ही नहीं हमारे पास इतनी। वी हैव ओनली 6 इंपल्सेस। Sir, minus 5 to 0. Impulses will start from -5 to 0. 0। ये सभी को क्लियर है? Sir, please come again. ये समझ नहीं आया आपने -5 to 0 क्यों किया? We have only 6 impulses starting from 0 to 5. If you take the reflection with respect to the y-axis, so 5 will reach up to -5. Correct, sir. Okay, so we have that Right. same graph, right, sir? That same. इसको जस्ट आप रोटेट कर दीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए इसका। सो मिरर इमेज मींस अभी y of n मेरे पास है 0 to 5, y of minus n will start from -5 to 0. ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Okay. Now what exactly you require? You require y of 4 minus n, right? अगर ये n minus 4 होता तो आप किस तरफ शिफ्ट करते? राइट साइड में। When n is of plus nature, but n यहाँ किस नेचर का है? Negative. नेगेटिव। तो जो हमारे पास y of 4 minus n है, y of minus n को आप किस तरफ शिफ्ट करेंगे? मतलब सॉरी, y of 4 minus n, 4 यूनिट जो शिफ्ट होगा, whether it will be on left side or right side. सर ये रहेगा तो 0 के राइट साइड में ही. क्यों रहेगा? देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बिठा के रखो, n अगर प्लस का है, ठीक है, इफ n is of plus nature and we are doing something n minus 1, n minus 2, then the impulses will always shift on the right side if n is of plus nature, right? And if n is of plus nature and we are doing something n plus 1, n plus 2, then your impulses will shift on which side? Left side. Left hand side. Fine. And if n is of minus nature or negative nature, then the same thing will be reversed. n अगर माइनस नेचर का है और उसके साथ प्लस है, तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? राइट साइड. राइट साइड में। ठीक है, और उसके साथ माइनस है तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, n अगर प्लस नेचर का है और उसको अगर आप शिफ्टिंग n minus 1, n minus 2, तो वो राइट साइड में होगा, प्लस है तो वो लेफ्ट साइड में होगा, और n नेगेटिव नेचर का है, सो वी विल हैव जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। ओके, सो नाउ वी हैव y of minus n plus 4, राइट? तो n माइनस नेचर का है, उसके साथ प्लस कर रहे हैं, तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा?
Right It will side. be circulated in right direction of how many units? 4 units. 4. तो जो चीज -5 से स्टार्ट हो रही थी वो अब कहां से स्टार्ट होगी? Yes, Once. 1. -1 से. आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा. ठीक है. नाउ वी हैव नेक्स्ट y of 2n-3. ठीक है. जब n के साथ कोई मल्टीप्लायर आ जाए, ठीक है, n के साथ कुछ भी मल्टीप्लायर आ जाए, देन यू कैन डू ओनली वन थिंग. आपके पास y of n ऑलरेडी है. y of n है आपके पास impulses from 0 to 5. But whenever you require some other things, हम लोग यहाँ भी कर सकते थे. y of 4 minus n में भी same thing कर सकते थे. By just putting the value of n, you can draw this. How? See, if I put, let's say, y of 2n minus 1 equals to y1, that is another signal. So y1 means, y1 n means you keep on changing the value of n, you will have the signal. तो n अगर 0 हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? -3. n अगर 0 पुट करेंगे y of -3, बट y of -3 है हमारे पास क्या? ओरिजिनल सिग्नल में देखिए, क्योंकि y तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से. 0 to सो 6. दैट मींस ये 0 पर कितना देगा आपको? 0. y1 कितना देगा? 0. y1 आपको देगा y of -1. ठीक है. तो y of -1 ओरिजिनल सिग्नल में एग्जिस्ट करता है क्या? No sir. नहीं, तो वो भी नहीं आएगा. y of 2 देखिए, y of 2 कितना होगा? Y of n 1. y1. तो y1 हमारे पास है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5. 5. तो वो मिल गया. y3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? n Y equals of to 3 पुट करेंगे तो बोला y3 कितना ऑलरेडी आपके पास? 3. 4 पुट करेंगे तो Y of तो 5 which is 1. 5 पर मैग्नीट्यूड कितना है? 1. 1. ठीक है. इसके आगे हम जाएंगे, लेट्स से y5 n equals to 5 पर, तो क्या होगा? Y of 7. तो वो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल में एग्जिस्ट करता है क्या? No. नहीं. so we No, will sir. have y of 2 minus n. क्लियर है सभी का? आ गया. सिमिलरली यू कैन ड्रॉ 8 minus 3n को ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे आप लोग. Yes sir. सिमिलरली यू कैन ड्रॉ n square minus 2n plus 1. ठीक है, कर सकते हैं. Sir, यस. आपका ये जो ग्राफ है ना y of 2n-3 वाला, यस. इसमें आपने 2 पॉइंट्स के बीच में लाइक 1 के ऊपर डॉट लगा रखा है, देन 2 और 3 के बीच में डॉट लगा रखे हैं. इसका क्या कोई मीनिंग है? उसका डॉट का कोई सेंस नहीं है. वो सिंपली ऐसे ही. ओके. इट डज नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है. करेक्ट सर. ओके. तो ये बाकी आप ड्रॉ कर लेंगे दोनों. 8 minus 3n और n square minus 2n plus 1 हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है. इफ xn इज ए आर्बिट्रेरी सीक्वेंस, तो उसकी जो एनर्जी हम निकालते हैं किसी भी सिग्नल की, एनर्जी को कैसे निकालते हैं हम लोग? n equals to minus infinite to infinite x square n. And you know one thing, that any signal can be split on its even part and odd part. x of n को हम क्या लिख सकते हैं? x of n xen plus xon, राइट? तो ये मैथमेटिकली जैसे ही xn को आप रिप्लेस करेंगे xen से और xon से, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट xen स्क्वायर प्लस xon स्क्वायर. और एक टर्म इसमें और आएगी, क्या आएगी? 2 times of that. 2 टाइप ऑफ xen xon. वो अपने आप में कैसा सिग्नल होगा? क्योंकि xen इवन है, xon ऑड है, तो किसी भी इवन सिग्नल को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? Odd signal. Odd ऑड signal. सिग्नल. तो इसका मतलब उसका जो सम होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जिसके बीच, दैट विल ऑलवेज बी अ 0. तो ओवरऑल आपको आ जाएगा इवन सिग्नल का स्क्वायर, द एनर्जी ऑफ द इवन सिग्नल प्लस एनर्जी ऑफ द ऑड सिग्नल. ये कॉन्सेप्ट याद रखना क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है. द ओवरऑल एनर्जी ऑफ ए सिग्नल इज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ इवन सिग्नल प्लस एनर्जी ऑफ ऑड सिग्नल इंडिविजुअली. ठीक है. उसी पर कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग.
A sequence x of n with energy equals to 5 has even part xen equals to half to the power mod of n. Find the energy in the odd part. क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. ओवरऑल एनर्जी दी है, इवन पार्ट की एनर्जी दी है, ऑड की निकालनी है. तो ओवरऑल एनर्जी में से आप किसको Even माइनस की कर देंगे? इवन वाले. इवन को. तो आपको ऑड का मिल जाएगा. ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. Once आपने कैलकुलेट ठीक से नहीं किया सीरीज को. three. अरे ऐसे रैंडमली कुछ मत बोलो. डू इट. इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको. हाफ टू द पावर, तो ये 1/4 टू द पावर मॉड ऑफ n हो जाएगा. और 1/4 टू द पावर मॉड ऑफ n कैन बी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स. एक आपका माइनस इनफाइनाइट से 0 जाएगा और एक आपका जाएगा 1 से लेके इंफिनिटी. वो आपको चेक करना पड़ेगा. देन यू विल गेट दिस. कितने लोग इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं? सीरीज तो आप लोगों ने सॉल्व की हुई है भाई. निकाल सकते हैं सर. तो निकालो ना. यही तो आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है. एक सीरीज का सम तो निकालना पड़ेगा भाई आपको. सॉल्व मैं नहीं करूंगा. सर 10/3. 10/3. अच्छा, कैसे आ रहा है 10/3? सर एक बार माइनस इन्फिनिटी से 0 तक उसको ऐड किया, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक अलग अलग ऐड करके दोनों को ऐड करके फिर माइनस में 5 में से सेपरेट कर दिया. 5 माइनस कितना आया था? 5/3. 5 सर माइनस 13/3. Sir, 1 आ रहा है सर आंसर. सारे 13 लोगों by- का अलग अलग आंसर आ रहा है. एक सर, सीरीज 13 का by सम निकालना खराब हो रही है आप लोग. सभी के आंसर्स, किसी का आंसर मैच ही नहीं कर रहा है. Sir, 13/3. देखो Yes, sir, 13/3, किसी का 10/3, किसी का 1, किसी का कुछ. क्या है ये जो मॉड ऑफ n लिखा हुआ है उसका कुछ सेंस है. 1/4 टू द पावर, एक बार जब माइनस n लेंगे तब आप लिमिट क्या रखेंगे? हेलो. सर लिमिट तो वही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रखेंगे ना. नहीं, वो तो रखेंगे, बट आप 1/2 द पावर n नहीं है. दिस इज 1/2 द पावर मॉड ऑफ n है. यस सर. दैट यू नीड टू स्प्लिट द लिमिट. हाँ सर, तो दो बार 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना. और हाँ, तो उसमें कितना आंसर आ रहा है आपका? सर कर रहा हूँ कैलकुलेट. बाकी लोग बताइए, किसी ने और किया हो तो. वन बाई log 2. log 2 कहाँ से भैया? log कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया तुमने? Anybody else? Sir, 29/9. सर 13/3 नहीं आ रहा. नहीं आ रहा? तो कितना आ रहा है?
सर 30/3 आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, चलो आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर आ रहा है 10/3। सर मैंने बोला था। नहीं नहीं, तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, मैंने डिनाई किया क्या? सी, phi equals to summation of minus infinity to infinity 1 by 2 the power 2 mod of n, ठीक है, प्लस एनर्जी ऑफ ऑड सिग्नल। अब इसको जो आपने 2 मल्टीप्लाई किया है ना, जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट को लेंगे, उसमें एक माइनस और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो माइनस? बिकॉज वो जीरो आपने 2 बार ले लिया इसीलिए। हाँ, बस यही लोगों से मिस्टेक हुई है कैलकुलेट करने में, राइट? Since we are considering this 0 2 times, that is why we are subtracting 1 from the overall sum, and the overall sum comes out to be 5/3. So 5 minus 5/3 will give you 10/3. क्लियर है सभी को ये आंसर इसका? यस सर। Now we have next question. Next question ये है, express the sequence in terms of scaled and shifted version of unit step. ठीक है, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है उसको आपको यूनिट स्टेप में लिखना है, ठीक है। तो फंक्शन आपको दिया गया है xn is 1 for n equals to 0, 2 for n equals to 1 and 3 for n equals to 2। तो मैंने एक सिग्नल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपका सिग्नल हो गया, 0 पर मैग्नीट्यूड 1 है, 1 पर 2 है, 2 पर 3 है। सो आई कैन राइट दिस सिग्नल दैट 1 वाले पे लिखेंगे डेल्टा n प्लस 2 डेल्टा n minus 1 प्लस 3 डेल्टा n minus 2। But this function is written in terms of impulse function. But if I want to write any impulse function in terms of unit step, तो डेल्टा एन आप कैसे अचीव कर सकते हैं? 2 यूनिट स्टेप्स के डिफरेंस से। डिफरेंस है, ठीक है। वो यूनिट स्टेप का डिफरेंस क्या क्या होगा बता सकते हैं? हाउ कैन यू राइट डेल्टा एन? ये मैंने इम्पल्स फंक्शन पढ़ाया था तब आपको लिखाया भी था। डेल्टा एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस u of n minus 1। वेरी नाइस। सो डेल्टा एन इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 1। तो डेल्टा एन को रिप्लेस कर दिया आपने यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन। नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा एन माइनस 1? It's u of n minus 1 minus u of n minus 2। Very nice. And similarly, delta of n minus 2, you can write u of n minus 2 minus u of minus n u minus of n minus 3। So when you put these values of delta n minus 1 and delta n minus 2, you will have the final expression in terms of step function. And these are, the final expression is nothing but un plus un minus 1 plus un minus 2 minus 3un minus 3. ठीक है? Sir, Yes. you wrote for the function you wrote delta n just because of at n is equal to 0 it's 1। Yeah. Okay, and for n minus 1 because of n is equal to 1 and n minus 2 because of n is equal to 2। Yeah. The magnitude is 2. Yeah। And at n equals to 2, this magnitude is 3. That is why 3 delta n minus 2. Okay sir। And when you substitute the value of delta n minus 1 and delta n minus 2 in terms of u of n, you will have this final function. वो मैंने substitute करके दिखाया नहीं है, आपको बता रहा हूँ। You have to write those terms and finally you will get this. ठीक है? अब कुछ questions आपको दिए गए प्रैक्टिस के लिए। लीनियरिटी टेस्ट करना है इसका आप सभी को, और इसको देखना है टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। ठीक है? So from my side, your chapter number 1 is completed. That is classification of signals and systems. Right? Now what I'll do next time, or meanwhile, I'll just upload a tutorial sheet for you guys. You have to solve and upload that sheet. Right? You will have
questions related to classification of signals and classification of system. In the next class, I'll start LTI system, that is linear time invariant system. This is your chapter number 2. If you have any problem, you can ask right now. Otherwise, I am just ending your class. If you have any question, you can ask. Hello. Okay, I hope. No questions, sir. Okay.